Sri Radha Ramana Vishrate. So today we are going to do case study number 9 from additional case studies issued by ICAI. So as usual, we will first see the questions and then we will read the case study. Okay. So first question says, do you agree with CA Archana's findings related to EQCR? So it is related to audit. EQCR, SQC1. The next question, SQC1, SA 230 जो इन्होंने पूछा है related to assembly of final audit files. Again, audit का question है. Then threat to auditors' independence identified in the inspection report. Again, audit. Next question, considering non-availability of audit evidence, CA Radhika should have issued. कौन सी आप ऑडिट रिपोर्ट इशू करोगे, कौन सा ओपिनियन आप दोगे ऑडिट. देखो ऐसा ही क्वेश्चन जिसमें 4 एमसीक्यू उन्होंने ऑडिट पे दे दिए. सो दिस क्वेश्चन इज नॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम. तो आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जहाँ पे सब कुछ एक ही सब्जेक्ट से मतलब एक ही सब्जेक्ट पे इंक्लाइंड होगा क्वेश्चन केस स्टडी आपकी पूरी. सो ऐसा नहीं मिलेगा आपको, बट वी हैव दिस, सो वी आर सॉल्विंग. Then do you agree with C. Radhika's observation relating to related party transaction? और अगर आप ऑप्शन थोड़ा बहुत भी देखोगे तो आपको कंपनीज एक्ट और सेबी वगैरह का रेफरेंस दिख रहा है, तो इट इज रिलेटेड टू लॉ. नेक्स्ट, व्हेन शुड रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर पी बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनी? रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात है, FR इंडेक्स 115. Recommend the strategic measures L and V LLP can implement to enhance the profitability and competitiveness of its bookkeeping division considering internal inefficiencies, external market challenges, and establishment of a center of excellence. So it is relating to costing. It is और कहीं तो अपन ये बात नहीं करते प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, कॉम्पिटिटिवनेस हमें अपनी एनहांस करनी है. नेक्स्ट, इन लाइट ऑफ मिस अर्चना's observation, redraft a policy to identify and evaluate possible threats to independence considering SQC1. MCQs कम थे कि इन्होंने डिस्क्रिप्टिव में भी ऑडिट का क्वेश्चन दे दिया. तो इट इज नॉट अ काइंड ऑफ केस स्टडी जो एग्जाम में पूछी जा सकती है. आपको एग्जाम में केस स्टडी ऐसे दिखेगी जहाँ पे सब सब्जेक्ट्स का आपको ब्लैंड दिखेगा. तो अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखोगे ना AFM पूछ रखा है, ना DT है, ना IDT इन्होंने पूछा है. ओके, लेट्स सी द केस स्टडी. ओके, सी राधिका शर्मा एक ऑडिट पार्टनर है LNV LLP में, और firm of chartered accountants. The firm was founded by CA Lata Subramanian in 1960 with a strong legacy of spanning over multiple decades. ये बहुत सारी cities में अपना expansion कर चुकी है इसको. Let's leave. Then C. Radhika was waiting at the Mumbai office to meet CA Archana Kumari, a fellow chartered accountant. C. Archana had been appointed by a competent authority to inspect and evaluate adherence to SQC1 and review selected audit documentations in relation to statutory audit of the financial statements for the year ended 31st March 2023. So, यहाँ पे बेसिकली क्या किया जा रहा है, EQCR वाला जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड ये हमें पैरा दे रखा है. Conducted by L and V LLP for a listed entity. Listed entity केस में EQCR क्या होता है, मैंडेटरी होता है हमारा. The review focused on 3 significant audit areas: revenue, TR, investments, due to their inherent risk of material misstatement in the audit engagement. So basically, CA Radhika और CA Archana, और CA Archana को क्या बनाया गया है, यहाँ पे EQCR बनाया गया है. रखा है, the receptionist informed CA Radhika about the arrival of CA Archana. Both of them exchanged pleasantries and CA Archana was guided into a pre-booked meeting room. CA Archana requested for the audit files for initiating audit inspection. CA Radhika explained that the audit documents are maintained electronically for ease of review. The archived version of the audit file has been hosted on the laptop of the firm. CA Archana explained that she would need some time to understand the policies of LNB and discuss her initial observations. At the end of the day, following discussions took place. क्या क्या discussion हुई देखें. CA Archana, can you please tell me about the service offerings of the firm? Does it also provide advisory services? CA Radhika ने कहा, we are a multidisciplinary firm providing a wide array of services. Our service offerings can be bifurcated between. देखो ये audit और assurance दे रहे हैं.
तो आई एम नॉट रीडिंग दिस इन टू एंटायरिटी बिकॉज हमारे क्वेश्चन से डायरेक्टली रिलेवेंट मुझे दिख नहीं रहा है सच। उसके बाद इन्होंने टेक्स्ट सर्विसेज के बारे में बता रखा है, फिर इन्होंने एडवाइजरी सर्विसेज के बारे में बहुत कुछ यहाँ पे बता रखा है। अच्छा, ये जो बुक कीपिंग सर्विसेज हैं ये भी प्रोवाइड करिए, उससे रिलेटेड हमारे पास कॉस्टिंग का क्वेश्चन है तो वहां थोड़ी बहुत चीजें काम में आ सकती है। बुक कीपिंग सर्विसेज इंश्योर्स द इंटेग्रिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस इन कंपनी डेटा, hence it requires experienced and skilled professionals who hold deep knowledge of the subject. Our services help businesses streamline activities, better business decisions, decrease execution costs, reduce time spent, and manage budget whenever necessary. So this para could be relevant. फिर सी अर्चना ने कहा दैट्स इंटरेस्टिंग बट हाउ डू यू इंश्योर दैट नो इंडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट अराइज व्हाइल एक्सेप्टिंग और परफॉर्मिंग एन ऑडिट एंगेजमेंट? इज देयर एन इंडिपेंडेंस पॉलिसी? कैन यू प्लीज शेयर अ कॉपी ऑफ सच पॉलिसी? सी राधिका ने कहा इफ यू ब्राउज टू द client acceptance section of the electronic audit file, we have documented our independence policy. In a nutshell, our independence policy is based on the requirements of XQC1 as issued by ICAI. As per XQC1, the firm has established policies and procedures designed to provide it with reasonable assurance that firm, its personnel, and wherever applicable, others subject to independence requirements maintain independence we are required by ICAI's Code of Conduct. Accordingly, firm is able to identify and evaluate circumstances and relationships that create threats to independence and to take appropriate action to eliminate those threats. So इन्होंने पूरा ये ऑडिट की लैंग्वेज छाप रखी और कुछ नहीं कर रखा. Or reduce them to an acceptable level by applying safeguards or if considered appropriate to withdraw from the engagement. The code also requires us to consider the requirements of applicable laws and regulations, example the Companies Act 2013. Sri Archana ne kaha, great, I would go through the independence policy in detail. Was any breach of independence requirements were observed for the engagement under inspection? So she is asking कोई breach है क्या? Sri Radhika ne kaha, no breach of independence was observed. We have a close relationship with the audit client. During the last year, due to high level of attrition, the client approached us to help in preparing the financial statements. Oh my God, which the firm decided to support. A team separate from the audit team was formed to avoid any independence threat. So, ये कहना चाह रहे हैं कि हमने safeguard लगाया है. सी अर्चना ने क्या कहा? Considering the engagement and the discussion is in industrial equipment segment, did you involve an engagement control quality reviewer for this engagement? So इन्होंने पूछा आपने क्या एक EQCR अपॉइंट किया है? सी राधिका ने कहा it is essential that the quality of work is of the highest standard. One of the ways in which we seek to achieve this high standard is through engagement quality control reviews. So basically, CA Archana is not the EQCR. CA Archana is not the EQCR. CA Archana is appointed by a competent authority to inspect and evaluate adherence to SQC1. So we can consider it कि maybe इसको ICAI ने भेजा हो या किसी और भी regulator ने इनको भेजा होगा. तो she is not EQCR. EQCR कोई और है यहाँ पे. Our preliminary understanding was different here. Okay, so see Radhika के कह दिया the objective of such reviews to provide an objective evaluation on or before the date of the engagement report of the significant judgments the engagement team made and the conclusions reached thereon. Pursuant to our quality management and risk management policies, we have appointed Mr. Qureshi as the EQCR for this engagement. तो EQCR इन्होंने Mr. Qureshi को appoint कर रखा है. See Archana, I'm not too sure about the skill and experience of the EQCR. Could you please elaborate his experience? See Radhika ne kaha, please be rest assured the EQCR involved in this engagement is very experienced in accounting and audit. So ये audit और accounting के expert हैं. He leads the banking and financial services audit practice. He is a member of ICAI and have over 30 years of experience in statutory audits, financial accounting advisory, and accounting due diligence services relating to financial service sector. We extensively leveraged his vast experience in all aspects of audit. He has also made decisions for the engagement team. तो एक तो आपने EQCR से अपने engagement team के लिए डिस्कशन करवा ली, इंडिपेंडेंस कहाँ बची भाई? और दूसरा, अगर आप देखोगे ये जो फर्म है, it is doing business of ये वो पैरा जिसमें बता रखा था ना ये
किस टाइप का बिजनेस कर रही है ये एंटिटी? या इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सेगमेंट देखो ये दे रखा। सो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सेगमेंट से रिलेटेड ये ऑडिट है। और अगर आप देखोगे ये जो EQCR है हमारा, इसका बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्सपीरियंस है, तो इंडस्ट्री में तो इनका कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। सो अगर आप देखोगे आपको ऐसा, अगर आप किसी को EQCR अपॉइंट करते हो तो उसके पास रेलेवेंट इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए ना, तभी तो वो एक वैलिड EQCR होगा। तो यहाँ पर मुझे ये दो इश्यूज दिख रहे हैं अपेरेंटली। Let's see. See, Archana, could you please elaborate about the revenue recognition policy of the entity in the discussion? अब revenue recognition की बात आ गई। So ये राधिका कह रही है कि हम revenue as per relevant index recognize करते हैं, जहाँ पे control of goods are transferred to the customer at an amount that reflects the consideration to which the company expects to be entitled in exchange for those goods and services. For example, revenue from sale of equipment is recognized at the point in time when control is transferred. Generally, on delivery of the equipment, the company has generally concluded that it is the principal in its revenue arrangement because it typically controls the goods or services before transferring them to the customer. The normal credit term is 30 to 90 days upon delivery. Company consider करती whether there are other promises in the contract that are separate performance obligations to which a portion of the transaction price needs to be allocated. जैसे कि वारंटीज हो गई, कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स हो गए, तो उनका ही सेग्रीगेशन कर देते हैं। In determining the transaction price for the sale of equipment, the company considers the effects of variable consideration, the existence of significant financing components, non-cash consideration and consideration payable to the customer, if any. तो इन सबका ही जितना भी पूरा इंडेक्स 115 में हम जैसे अकाउंटिंग करते जिन जिन एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते सब कुछ उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है। वैसे अर्चना ने कहा, was inclined to ask you about the revenue transaction with customer P. I could see you concluded the revenue recognition was appropriate, but it required exercise of significant judgment. Please explain this transaction. तो इन्होंने किसी कस्टमर P के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुआ है उसके रिगार्डिंग पूछा है। फिर राधिका कह रही है the company had a customer P which was undergoing restructuring due to issues related to liquidity. The company has decided not to do any further business with customer P. The customer has informed that it would provide letter of credit from a nationalized bank against which the company had dispatched goods. Company has manufactured the goods exclusively for customer P, but a letter of credit was not yet arranged because it was in process till the date of our audit report. However, basis the past experience of no default by customer P, the company recognized revenue. So अगर आप यहाँ पे देखोगे क्या हो रहा है, there is no surety of payment. You required letter of credit, वहां पे लिक्विडिटी इश्यूज ऑलरेडी चल रहे हैं इस कस्टमर से रिलेटेड, और आपने ये सब कुछ जानते पूछते भी क्या कर लिया, रेवेन्यू का रिकॉग्निशन कर लिया, तो दिस सीम्स रॉन्ग। बाकी हम इसको पूरा एनालाइज करेंगे क्या क्वेश्चन दे रखा है। P. Archana, qualified audit opinion was issued in the current year due to inability to comment the recoverability of the company's investment in subsidiaries. Could you explain the rationale for the same? So, qualified audit opinion दिया गया है और इसके रिगार्डिंग ये डिटेल्स मांग दी है। फिर राधिका ने कहा the qualification was limited only to the investments of the company in one subsidiary. सिर्फ एक subsidiary से रिलेटेड है। It does not have impact on the recoverability of the outstanding loans given to the subsidiary. Since the undeducted misstatements were limited to specific investments in absence of sufficient appropriate audit evidence, there is no pervasive impact as per the requirements of SA 705. Accordingly, qualified opinion appropriate समझा गया। So अगर आप यहाँ पे देखोगे एक सब्सिडरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, उसके रिगार्डिंग क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन दिया गया है, और ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे परवेसिव इम्पैक्ट इसका एनालाइज नहीं कर रहे हैं, इनको लग रहा है ये परवेसिव नहीं था। लेट्स सी अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी इसके रिगार्डिंग। सी अर्चना, इन हाउ मेनी डेज वाज द इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट फाइल असेंबल्ड? सो कितने टाइम में असेंबलिंग करनी होती है हमें ऐसे 230 के रिगार्डिंग, अगर आपको याद हो तो दे से ये करते हैं नॉट मोर देन 65 डेज आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, जबकि होना क्या चाहिए एज पर ऐसे 230 60 डेज होना चाहिए। देखो SQC 1 तो बोलता है आपको टाइमली कर लेना चाहिए, और जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज है वो हमें ऐसे 230 बताता है।
तो 60 days होना चाहिए, इन्होंने 65 days लिए, so it is incorrect. Post completion of discussion, CA Archana continued to review the electronic file till next week. Multiple rounds of discussions were held between CA, Radhika and CA Archana. On the last working day, CA Archana set up a meeting to discuss the findings of the draft inspection report. हमने उसको एक्सकर्व दे रखा है. So let's see, चलो. Simultaneously, a business review meeting was held by the firm's partners to evaluate the firm's operations and to assess the potential implications the firm were to cease providing bookkeeping services. Again, bookkeeping services का कुछ यहाँ पे context आया है, so we have to read it. Given the concerns highlighted in the draft inspection report, the bookkeeping division under advisory services launched in November 14 initially expanded rapidly, going to about 50 locations within 3 years, primarily in metro cities. However, this rapid expansion exposed weaknesses in the division's systems and infrastructure which were unable to support such growth. As a result, the firm encountered operational difficulties. तो इन्होंने रीजनिंग भी बता दी कि आपके डिवीजन के सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत आई, जिसके कारण आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी. बुककीपिंग सर्विसेज ऑफर लो मार्जिन सर्विसेज व्हाइल फेसिंग हाई ऑपरेशनल कॉस्ट. तो मार्जिन आपका लो है, कॉस्ट आपकी हाई है. Including rent, payroll, these challenges were further exacerbated by issues like high staff attrition, supply chain inefficiencies. तो ये सब पॉइंट्स आपके कॉस्टिंग वाले आंसर का पार्ट बनने वाले हैं. Consequently, the division was forced to close nearly 10 offices within 2 years of its launch. In response to these challenges, the bookkeeping division has since standardized its operations, streamlined processes, and centralized its supply chain to improve efficiency. Despite providing a comprehensive range of bouquet services under one roof, offering a broader portfolio than many local advisory firms, L&B LLP struggles to compete effectively with smaller, politically connected local advisory firms who are not a firm of chartered accountants. These local advisory firms often offer limited but highly competitive services, particularly in terms of pricing. In 2016, L&B LLP faced significant setbacks when it was forced out of several profitable regions due to intense opposition from small, locally connected firms, highlighting the challenges posed by local competition. तो यहाँ पे competition के कारण भी आपको बड़ी दिक्कतें सहनी पड़ी. फिर one of the key issues L&B LLP faces is the uneven pricing structure among local advisory firms. Although L&B LLP offers its services at comparable prices and provides a superior quality of service, local businesses frequently prefer to work with local firms. तो इनको एक ये इशू भी आ रहा है कि लोकल लोग लोकल के साथ ही काम करना चाहते हैं, जहाँ के नेटिव होते हैं वो वहीं के लोगों के साथ थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, तो वो वाला इशू भी आया. Valuing proximity and political ties over service quality. Moreover, bookkeeping division requires continuous investment, yet it lacks strategic synergy with the firm's broader activities. The division continues to incur losses despite the improvements in operations. For the firm to achieve its expansion goals and maintain profitability across all offices, it must rethink its strategy. The aim is to ensure that every office not only sustains itself but also contributes to the overall profitability of the firm, which is crucial for scaling the business in a sustainable way. The firm is contemplating various strategic measures, including establishment of a center of excellence. So this is all relevant for your costing, वरना हम इतना कुछ पढ़ते ही नहीं. अब देखो कॉस्टिंग वाला जो क्वेश्चन होगा ना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मैंने पहले ही बताया आने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं. हमें यहाँ पे दे रखा है, तो अगर कभी गलती से ऐसी सिचुएशन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे टैकल करोगे, इसलिए सिर्फ मैं एक क्वेश्चन करवाती हूँ. इनिशियल देख लेते हैं कि उनकी ड्राफ्ट रिपोर्ट उन्होंने क्या क्या लिखा है. तो रिव्यू ऑफ फर्म वाइड ऑडिट क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम. Recently, the firm has formulated EQ share policy, which in their area requires EQ share and audit of listed entities. Such review was conducted in timely manner at appropriate stages during the engagement, so that significant matters may be promptly resolved to the reviewer's satisfaction before the report is issued. However, the firm's policy and procedures on appointment of EQCRs and their eligibility conditions are not in line. बिल्कुल सही कह रहे हैं. In the instant case, EQCR के पास experience नहीं है,
के पास एक्सपीरियंस है बैंकिंग और फाइनेंशियल का, और जो हमारा सेक्टर है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर है फर्म की ये पॉलिसी के रिगार्डिंग इन्होंने इशू रेज किया है। फिर इंडिपेंडेंस जो थ्रेट है, ये क्या कर रहे हैं, नॉन ऑडिट सर्विस भी रेंडर कर रहे हैं। बुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए थे ना जिस कंपनी की ऑडिट करी उसी के। सो भले ही सेपरेट टीम हो, दिस tantamount to providing bookkeeping services to listed company. However, such service cannot be provided to a listed company as per ICS Code of Ethics. तो ये भी इशू दिख रहा है एक। फिर failure to consider material and pervasive impacts of misstatements while expressing audit opinion on the financial statements. So यहाँ पे क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन आपने स्पेसिफाई किया है कि आप इन्वेस्टमेंट्स, सब्सिडियरी जो इन्वेस्टमेंट्स है उनकी रिकवरेबिलिटी के बारे में नहीं कमेंट कर पा रहे हो। However, the audit firm did not consider other financial exposures which are in the form of loans. It is quite obvious that a doubt on the recoverability of investment equally creates doubt on recoverability of loans to that subsidiary. So अगर आपका उनने आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसकी आपको श्योरिटी नहीं है, तो उनसे आपने उनको जो लोन दे रखा है उसकी मिलने की क्या श्योरिटी होगी। So total financial exposure including investments in the subsidiary represented 60% of the company's total net worth. A very high level estimate performed indicate a possible reduction in profit. PBT आपका 70% से कम हो सकता है अगर impairment हो जाएगा तो। So it is obviously material पर pervasive. So material भी है, pervasive भी है, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए था, अगर आपको एविडेंस नहीं मिलता और मटेरियल इन परवेसिव होता है तो फिर उस केस में आपको क्या देना पड़ता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हो आप। और आपने क्या दे दिया, क्वालिफाइड ओपिनियन देके आपने पीछे छुड़ा लिया। क्यों? क्योंकि आप तो क्या दलील दे रहे हो कि यहाँ पर सिर्फ एक ही सब्सिडरी से रिलेटेड है तो ये छोटा सा एलिमेंट होना चाहिए ना भाई, क्वांटिटेटिव टर्म्स में देखो ना। फिर दे रखा है the rationale documented by the engagement partner is inappropriate since the engagement partner failed to consider total exposure of the company while evaluating possible effects of undetected misstatements on the FS. There is no explanation for how the engagement concluded that there was no impact on the recoverability of loans. तो यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंटेशन में भी गड़बड़ी है। Unapproved related party transactions not considered while forming the audit opinion. During the year, the listed company purchased goods amounting to 150 crores from related parties as defined under Companies Act 2013. Turnover था 1300 crores का for the year. Under Section 188 of the Companies Act, shareholders' approval is required if purchases of goods from related party exceeds 10% of the turnover of the year. In the extent case, it amounts to 12%. The electronic audit file simply states that the transactions are at arm's length and in the ordinary course of business. No detailed assessment is included considering non-compliance of companies and the audit opinion should have been modified in respect of this matter. तो ये हमारी केस स्टडी कंप्लीट होती है। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि जो EQCR से रिलेटेड फाइंडिंग है, क्या आप अग्री करते हो सी अर्चना से? बिल्कुल हम अग्री करते हैं, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया और ये ऑप्शन तो ऐसे इनकरेक्ट हो गया। बी ऑप्शन कह रहा है कि मिस्टर कुरैशी के पास ना तो रेलिवेंट सेक्टर का एक्सपीरियंस है और ये डिसीजन भी नहीं ले सकता एंगेजमेंट टीम के लिए, तो ये बिल्कुल सही है। और सी कह रहा है कि इनके पास सेक्टोरियल एक्सपीरियंस और टेक्निकल नॉलेज नहीं है लेकिन ये एंगेजमेंट टीम को सपोर्ट कर सकता है। भाई वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल कब तक हो जाना चाहिए आपका? 60 डेज, तो 60 डेज वाला ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट। देन थ्रेट टू ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस आइडेंटिफाइड इन द इंस्पेक्शन रिपोर्ट, तो ये क्या करे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे ना लिस्टेड एंटिटी के लिए, तो ये क्या करे, खुद ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो और फिर खुद ही उसकी ऑडिट कर रहे हैं। तो ये कौन सा थ्रेड हुआ? आप खुद का काम ही क्या कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, तो इट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ना ये इंटरेस्ट थ्रेड है, ना एडवोकेसी है, ना ये फैमिलियरिटी थ्रेड है। देन कंसीडरिंग नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, सीए राधिका शुड हैव इशूड, जो ये इन्वेस्टमेंट वाला इशू था उसके रिगार्डिंग इनको कौन सा ओपिनियन इशू करना चाहिए था? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू करना चाहिए था। डू यू अग्री विद सी राधिका's ऑब्जर्वेशन रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन? ये हम लॉ खोलते हैं और फिर चेक करते हैं। सो मॉड्यूल ए में होना चाहिए, आई थिंक चैप्टर 3 में होगा वैसे ये। चलो देख लेते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस,
आप लोग ना थोड़ा बहुत एक बार इंडेक्स जरूर देख के चले जाना, तो ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना आए चीजों को ढूंढने में। देखो ये दे रखा है, थर्ड चैप्टर में दे रखा है 3.55 पे। तो सेक्शन 188 दे रखा है। सबसे पहले इन्होंने रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन दे रखी है, तो हमें तो डायरेक्टली बोल रखा है रिलेटेड पार्टी वो है। फिर रिलेटिव का मीनिंग है, फिर इन्होंने बता दिया कौन कौन से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पे एप्लीकेबल होता है। फिर देखो ये पॉइंट देखो इन्होंने क्या कह रखा है बॉक्स के नीचे वाला, इट इज नोटवर्दी दैट सेक्शन 188 डज नॉट बार अ कंपनी फ्रॉम एंटरिंग इनटू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर तो सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए प्रोसीजर फॉलो करना रहता है, ओके, कि आपकी जो प्रिस्क्राइब लिमिट से एक्सीड ना हो जाए। फिर थर्ड पॉइंट में इन्होंने कह रखा है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज एंटर इनटू बाय द कंपनी इन इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड एट आर्म्स लेंथ प्राइस, तो सेक्शन 188 अट्रैक्ट नहीं होता, इसलिए आपको कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हमारे केस में आर्म्स लेंथ ही तो थी, या इट वाज ऑन आर्म्स लेंथ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो आपको अप्रूवल चाहिए ही नहीं था। सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एनी अप्रूवल। तो अग्री करते हो क्या आप इस ऑब्जर्वेशन से? नो वी डोंट अग्री, बिकॉज shareholders approval is not required if transaction is at arm's length and ordinary course of business. ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अगर हम देखें क्या क्या ऑप्शन से मैच करवा देती हूँ, बी डी ए, बी डी ए, बी डी, बी डी ए, बी डी, ओके। अब डिस्क्रिप्टिव पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड, कि आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था कस्टमर पी से रिलेटेड, तो आपको पेमेंट नहीं मिल रहा। तो अगर हम इसका इंडेक्स 115 के थ्रू इम्प्लीकेशन चेक करते हैं, पहले देखो 115 सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कहां पर है, सो इंडेक्स पे ढूंढते हैं। इट इज इन चैप्टर 9 मॉड्यूल 4। सो देखो एक तो होता है इंडेक्स 115 में 5 स्टेप मॉडल, कि आप जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे तब आपको क्या क्या पांचों स्टेप्स आप कंसिडर करोगे। लेकिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना भी है नहीं, हमें स्टेप 1 बताता है कि आप रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। देखो ये चार्ट में दे रखा है ना, क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। तो आप रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, उसके लिए हमें 5 क्राइटेरिया और देखने रहते हैं। तो ये तो 5 स्टेप मॉडल यहाँ पे दे रखा है, पर हमें तो देखना है कि हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर भी सकते हैं या नहीं। सो क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजिंग अ कॉन्ट्रैक्ट और रेवेन्यू, देखो ये 5 क्राइटेरिया दे रखे ए बी सी डी ई, कि द पार्टी से अप्रूव द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा आइडेंटिफाई करोगे आप दोनों के राइट्स, आप पेमेंट टर्म्स को आइडेंटिफाई करोगे, कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं, और क्या ये प्रोबेबिलिटी है कि आप कलेक्ट कर लोगे सारा कंसिडरेशन अपने कस्टमर से इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमारा जो ये 5th क्राइटेरिया है दैट इज डाइसी, क्योंकि लिक्विडिटी वो उनकी जो लिक्विडिटी पोजीशन है दैट इज नॉट गुड। सो यहाँ पर आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए था। तो अगर हम इसका आंसर देखें, देखो उन्होंने सबसे पहले ये 5 पॉइंट्स बताए, उसके बाद जो हमारे केस में 5th पॉइंट है उस पर डाउट क्रिएट हो रहा है। तो इन द गिवन केस एज अ कस्टमर हैज लिक्विडिटी इश्यूज द कलेक्शन इज नॉट कंसिडर्ड टू बी प्रोबेबल अकॉर्डिंगली till the time LOC is arranged from a nationalized bank. Criteria 9A is not met, hence revenue recognition should be deferred till receipt of LOC. Next question, recommend the strategic measures L and B LLP can implement to enhance the profitability and competitiveness of its bookkeeping division. आपको ये सब कुछ ध्यान में रखना है। So देखो जो जो पॉइंट्स मैंने आपको अंडरलाइन करवाए थे केस स्टडी पढ़ते टाइम, आपको वो सब पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए अपना एक आंसर फ्रेम करना है। ये क्वेश्चन अगर कभी आ भी जाता है बाई चांस, तो आप इसी तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप जाके अभी मॉड्यूल में ढूंढने की कोशिश भी करोगे ना, तो आपको डायरेक्टली कुछ भी नहीं मिलेगा इससे रेलेवेंट। सो ये क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है और ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत कम चांसेस है। सो इनमें ना तो आप टाइम इन्वेस्ट करके कुछ अच्छा गेन कर सकते हो। सो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल यही है कि मोस्ट प्रोबेबली 5 नंबर के क्वेश्चन आएगा, और 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए हम इतने एफर्ट्स नहीं दे सकते कि हम पूरा
कॉस्टिंग का मॉड्यूल पढ़ ले और उसके बाद भी आई कैन गारंटी यू कि आपके 5 में से 5 मार्क्स नहीं आ सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव रहता है इसका सोल्यूशन। सो आपको क्या करना है, अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर बस इसको अटेम्प्ट करिए आना जितना आप कर सको। तो आप जितना मैंने सब कुछ नोट डाउन करवाया था आपको, आप वो सब के बेसिस पे इसका आंसर फ्रेम करोगे कि आपको कॉम्पिटिशन के रिगार्डिंग जो देखना रहेगा, आपको बायर की पावर्स को एनालाइज करना रहेगा। सो आप उससे रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पे सबको मिला जुला के एक आंसर फ्रेम कर दोगे। तो मैं आपको आंसर एक बार गो थ्रू करवा देती हूँ, सो दैट आपके माइंड में एटलीस्ट इससे रिलेटेड इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको पता रहे। सबसे पहले देखो इन्होंने क्या कह रखा है, आप सबसे पहले अपनी वैल्यू चेन को एनालाइज करो। क्या करो, सबसे पहले अपनी वैल्यू चेन को एनालाइज करो, जिसमें आप ढूंढो कि आपकी क्या की एक्टिविटीज है, जैसे क्लाइंट एंगेजमेंट, सर्विस डिलीवरी, रिपोर्टिंग। द फर्म कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इट्स ऑफरिंग्स। और इसमें आप क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन स्टैब्लिश करोगे डिपार्टमेंट्स के बीच में, ताकि इफेक्टिवली रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो सके और क्लाइंट की नीड्स को फुलफिल किया जा सके। सबसे पहला काम क्या करोगे, आप वैल्यू चेन को एनालाइज करोगे कि आपका एग्जैक्टली किस तरीके से आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। तो इसके बाद आप बायर की पावर को एड्रेस करोगे, क्योंकि क्लाइंट क्या है, भगवान। जो हम वो प्राइसिंग के कारण वो लोकल फर्म्स को क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे, लोकल फर्म्स के साथ ही अपने बिजनेस डीलिंग्स करना चाहते थे, तो वो इशू आपको देखना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, टीयर्ड प्राइसिंग कर सकते हो, डिस्काउंटेड पैकेजेस ले सकते हो, ताकि आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन आप एक बार मेंटेन कर पाओ। और प्राइस सेंसिटिव क्लाइंट्स अगर है तो आप ये कर सकते हो, जबकि आप अभी प्रेजेंटली क्या कर रहे हो, फिक्स प्राइस ऑफर कर रहे हो, सो दैट इज क्रिएटिंग प्रोबेबली अ हर्डल। और आप क्लाइंट्स को एजुकेट करो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में, जैसे हाई क्वालिटी, एरर फ्री बुक कीपिंग। इन सब के कारण वो आपकी अगर प्रीमियम प्राइस भी अगर आप चार्ज करना चाहते हो तो वो ग्रेजुअली उसके लिए हाँ कर देंगे। फिर आप एक क्या करो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाओ, जहां पर आप क्या करोगे, बेसिकली जो अपने प्रोफेशनल्स हैं उनको एक तो ट्रेन वगैरह करोगे, आप अच्छे प्रोफेशनल्स ही हायर करोगे। सो उस तरीके से आप क्रिएट करोगे, सो दैट आपके पास जो HR है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो अच्छी क्वालिटी वाले हो, ताकि क्लाइंट सेटिस्फैक्शन बना रहे। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, आप कुछ कॉलेजेस वगैरह के साथ टाई अप करके स्किल्ड रिसोर्सेज को हायर करने का इनिशिएटिव भी ले सकते हो, सो दैट आप जो हायर करो दैट इज गोइंग टू बी टॉप नॉच पीपल। तो दैट इज अनदर थिंग दैट यू कैन कंसिडर। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, मार्केट डिफरेंशिएशन और कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग कर सकते हो खुद की। उसके लिए आप क्या करोगे, यू विल ऑफर हायर क्वालिटी एंड मोर रिलायबल सर्विसेज, क्योंकि आप तभी खुद को डिफरेंशिएट कर पाओगे जब आप कुछ अच्छा ज्यादा प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो आप अपना लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो है कम्युनिकेट करो, इनिशियली उनको लोअर प्राइस से लेकर आओ, और फिर एक बार जुड़ने के बाद तो फिर आप खुद के लिए उनको कन्विंस कर ही सकते हो कि आप क्या बेटर उनको एक्चुअली में प्रोवाइड कर रहे हो। और सिर्फ प्राइस पे compete करने से बेटर है द कंपनी शुड वर्क ऑन रिटेनिंग एग्जिस्टिंग क्लाइंट। साथ ही साथ आपको एग्जिस्टिंग के साथ भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं न्यू आ रहे हैं तो उनके चक्कर में पुरानों को भूल गए। सो दैट यू ऑल्सो नीड टू टेक केयर। देन स्ट्रीमलाइन एक्सपांशन स्ट्रैटेजी। तो आपको एक्सपांशन जो करना है, अगर करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सही से उसके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क बना के, एक रोड मैप बना के फिर चलना रहेगा। So rather than expanding rapidly into new regions, the firm should focus on strengthening operations in existing markets. पहले आप existing markets में बिल्कुल जम जाओ, उसके बाद new को explore करो ना। Ensuring each office becomes profitable, centralized support functions such as IT, HR could standardize processes and reduce overhead costs. तो आप कुछ चीजों को standardize भी कर सकते हो, आप हेड ऑफिस पे उनको मेंटेन कर लो, और जो ब्रांचेस से होनी है, आपकी डिफरेंट ऑफिस से होनी है, सिर्फ वहां पर आप जो फाइनल क्लाइंट्स को डीलिंग कर रहे हो वो आप काम वहां से करो। और कुछ ऐसे रीजन्स में अगर आपको एक्सपेंशन करना है तो आप ऐसे रीजन्स में करो जहां पे कंपटीशन कम हो, सो दैट आप इजीली अपना प्रेजेंस स्टैब्लिश कर पाओ और डायरेक्ट कंपटीशन अवॉइड कर पाओ। कंक्लूजन क्या है, आप इन सब इनएफिशिएंसीज को जो आपकी वैल्यू चेन में इन्वॉल्व है इनको सबसे पहले एड्रेस करो, ताकि आप क्या कर पाओगे, एक बेटर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी अडॉप्ट कर पाओगे। आप जो लोकल टैलेंट है उसको भी लेवरेज कर पाओगे। आप लोकल लोगों को अपने टीम में शामिल करो ना, ये भी कर सकते हो। अपनी कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग बनाओ और उसके बाद फिर न्यू मार्केट्स में एंटर करो। तो दिस इज समथिंग विच इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, पर इनको टैकल करने का सिर्फ यही तरीका है कि आप खुद की अंडरस्टैंडिंग, जितनी आपकी खुद का होराइजन अच्छा होगा आप उतना बेटर आंसर फ्रेम कर पाओगे। तो जितने पॉइंट्स हमने जॉट डाउन किए थे, आप उन्हीं का आपको क्या करना था, एक तरीके से सोल्यूशन देना है, दैट्स इट। सो अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी करके आओगे, आई कैन फील यू कैन गेट 3 marks समथिंग, एंड विच इज प्रिटी गुड। अगर आप वैसे भी एफर्ट्स करोगे तो भी फुल मार्क्स तो आने नहीं है।
एंड लास्ट क्वेश्चन, इन्होंने हमें कहा कि आप रीड्राफ्ट करो इंडिपेंडेंस पॉलिसी को एक तरीके से। अब मैं अगर आपको बताऊं ना, ये क्वेश्चन अगर आप ऑडिट के एसएम में भी ढूंढोगे ना, आईसीएस एसएम में, आपको नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि मेरी तो प्रोनाउंसमेंट्स पढ़ी हुई है तो मुझे तो पता है ये जो टॉपिक है सिर्फ प्रोनाउंसमेंट्स पे कवर है। सो अब जब हम ऑडिट के लिए प्रोनाउंसमेंट नहीं पढ़ते हैं तो आईबीएस के लिए तो कहाँ ही रेफर करेंगे। सो देखो, अगर आपने नहीं देख रखा तो पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस ही नेग्लिजिबल है, बिकॉज आईसीआई अभी तो ऑडिट में ही आई थिंक प्रोनाउंसमेंट से ऐसा कुछ ऐसा सच पूछ नहीं रही है। तो अब अगर इन केस आ जाए तो आप क्या कर पाओगे? सो यू हैव नो ऑप्शन, आइदर यू हैव टू राइट इट बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, या फिर मॉड्यूल में आपको जितना कुछ इधर छोटा मोटा मिल जाएगा उसके बेसिस पर लिख सकते हो, बट ऑल टुगेदर आपको ये आंसर नहीं मिलेगा। पर मेरा तो प्रोनाउंसमेंट पढ़ा हुआ है तो मैं तो आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ। तो ई रिसोर्सेज सेक्शन में आपको प्रोनाउंसमेंट्स मिल जाएगी इस फॉर्मेट में। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको उनके लिंक डायरेक्टली खुल जाएंगे। तो देखो, इंडिपेंडेंस इन्होंने पैरा 18 से 27 पे डिस्कस कर रखा है। अब आप मेरे से पूछोगे मैम हम क्या करें, क्या हम प्रिंट करवाएं क्या प्रोनाउंसमेंट्स? तो देखो, दिस इज आइडियली नॉट अ बेनिफिशियल थिंग, पर आप बिल्कुल ये रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप करवा सकते हो, बट फिर भी गारंटी नहीं है ना, आपको टॉपिक मिल ही जाएगा। तो इट इज समथिंग जहाँ पे आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना रहेगा मेरे हिसाब से, इसको जज कर पाओगे बेस्ट। और दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप ट्राई कर लेना कि आपके किसी ऑथर के मॉड्यूल में ऐसा कुछ टॉपिक कवर है तो आपको शायद वहां से कुछ बेनिफिट मिल जाए, बट अदरवाइज तो ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर चलो फिर भी एसक्यूसी 1 से ही है, ये हमें पता था, सो फिर भी हम ढूंढ लेंगे। सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट योर रिस्क एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक एक्शन। मैं शॉर्ट कुछ नहीं बता सकती हूँ कि ऐसा ही कर लूँ। मेरे पास तो देखो प्रोनाउंसमेंट्स थे तो मैं तो आईबीएस में भी लेके गई थी, आई कांट से एनीथिंग फॉर यू। देखो, यहाँ पर इन्होंने पूरा इंडिपेंडेंस जो दे रखा है, कुछ नहीं करना आपको। ये 18th पॉइंट जो बोल्ड कर रखा है, 19th पॉइंट आप बता दोगे, उसके बाद 20th पॉइंट पूरा, तो मतलब जितना 20th पॉइंट तक तो एटलीस्ट आप लिख ही दोगे इसमें कि आपको बेसिकली क्या करना है। यू हैव टू कम्युनिकेट योर पर्सनल, या सबको अपनी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताना है। फिर अगर आप कुछ आइडेंटिफाई करते हो तो उसका आप प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन करोगे, ये सब इसमें बेसिकली बता रखा है। तो लेट्स सी द आंसर डायरेक्टली सो दैट आपको मैच हो जाए कि मैंने सही टॉपिक आइडेंटिफाई करा है ना। तो देखो, पहले तो उन्होंने बेसिक बोल दिया, फिर उन्होंने इलस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस पॉलिसी की बात करना स्टार्ट किया। तो वही देखो, सबसे पहले आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन बताओगे क्लाइंट एंगेजमेंट्स के बारे में, आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे ताकि वो थ्रेट्स वगैरह को आइडेंटिफाई कर पाए। फिर आप सेफगार्ड्स लगाओगे ताकि उनको आप एलिमिनेट और रिड्यूस कर पाओ। फिर कम्युनिकेट और एक्यूमुलेट करोगे आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कि आपके सारे जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। आप उस इन्फॉर्मेशन को क्या करोगे, मेंटेन और अपडेट करोगे। और अगर कोई थ्रेट आता है तो उसके अगेंस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन लोगे। प्रॉम्प्टली रिपोर्ट करोगे कोई भी ब्रीच होता है तो। नीड फॉर सेफगार्ड्स का क्राइटेरिया एस्टैब्लिश करोगे, पीयर रिव्यू वगैरह। सेम सीनियर पर्सन हैज बीन यूज्ड फॉर 5 years। तो बेसिकली उन्होंने पूरा यहाँ पे जितना हो सकता था सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है। सो आई हैव टोल्ड यू ये कहाँ से आया है और किस तरीके से आप इसको टैकल कर सकते थे। सो यही है जो है, बट डोंट वरी, ऐसी केस स्टडीज एग्जाम में नहीं आएगी। तो एग्जाम में ऐसी चीजें आएगी जो आप ट्रेस कर सको, ऐसा ना हो बिल्कुल ही मॉड्यूल से भी ना पूछो और कहीं से ही पूछ ले। और जैसे कॉस्टिंग वाला था वैसे क्वेश्चन भी आने का चांस नहीं है, बहुत कम है। तो डोंट वरी फॉर दैट, बी चिल। और इन केस कभी हम आ भी जाए तो एडवर्सिटी में कैसे टैकल करना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। राधे कृष्ण।